Hello and welcome to the YouTube channel of Vikramaditya Classes. I am Amarjeet Kasyap and I'll be teaching you biology. Okay, so today we will be discussing the first chapter of class 10th biology, that is life process. Okay, तो क्लास 10 की पहली चैप्टर जो है बायोलॉजी की उसे डिस्कस करेंगे हम डिटेल में समझेंगे उनके बेसिक प्रोसेसेस क्या है, क्या क्या अलग अलग प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं और उन्हें कैसे हमारा बॉडी एग्जीक्यूट करता है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट इनटू द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो देखते हैं क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जब हम इस चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे तो किन किन चीज़ों को हम समझ चुके होंगे अच्छे से और किन किन चीज़ों के बारे में हमें अच्छी और पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी. So let's see. The very first thing that we will be studying in this chapter is life process. What is life process? Okay? जानेंगे कि life processes होता क्या है. Then in the second section we'll be discussing the different kinds and types of life processes that goes on in our body. The different life processes like nutrition. Okay? The different types of nutritions, okay, that is autotrophic and heterotrophic. इसमें हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, है ना, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स तो प्लांट होते हैं. और इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, और इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो अदर अपकमिंग सेक्शंस में हम जानेंगे कि डिफरेंट और क्या क्या जो प्रोसेसेस हैं हमारे बॉडी में वो चलती हैं. लाइक रेस्पिरेशन, विल बी डीलिंग इन डिटेल अबाउट रेस्पिरेशन. In the next section, we'll be dealing about transportation. Okay, need to rub this. Then we'll be studying transportation. Transportation. Both in plants and animals. And in the final section, we'll be dealing with excretion. Okay, both in plants and animals. In plants and animals. So, this is all we have to study in this chapter. So, in this chapter, we'll be dealing the various life processes, the nutrition, respiration, transportation and excretion in both plants and human bodies. So without wasting any time, let's get started with the very first topic of this chapter, which is life process. है ना, सबसे पहला टॉपिक हमने लिखा था इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग लाइफ प्रोसेस. तो जानते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है. What is life process? We all know that we are alive, but how do we come to know that we are all alive? We are alive. Yes, we are alive because we can walk, we can talk, we can sleep, we can breathe, we can grow, etc., etc., etc. But what about if we talk in biological terms? How will you satisfy others that you are alive when talking with respect to biology? When it comes to biological terms, when we are supposed and we are asked to clarify that whether we are alive or not, we have to define it using the life process. That is the biological processes. Okay? मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम बायोलॉजी के टर्म में बात करते हैं कि हम जीवित हैं या नहीं है, तो हमें इसे लाइफ प्रोसेस या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उस टर्म में हमें इसे डिफाइन करना होता है. सो व्हाट बायोलॉजिकल प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस आर बेसिकली, है ना, देखते हैं. तो इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले सुनते हैं कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस एंड देन वी विल बी लुकिंग इनटू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस टॉपिक. So the definition of life process is
all the biological process that are continuously taking place in our body to keep us alive, है ना। मतलब हमारे शरीर में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, खड़े हैं, सांस ले पा रहे हैं, फूड डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारे बॉडी में, ये सारे प्रोसेसेस जिनकी वजह से हम जीवित है ना, दीज ऑल प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, है ना। डेफिनेशन लिखेंगे अब हम लोग लाइफ प्रोसेस की कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। all the biological processes that are essential for our survival are called as life process, है ना। मतलब जिंदा रहने के लिए जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं वो सारे क्या हैं, लाइफ प्रोसेसेस। एग्जांपल्स देखते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इनके भैया, न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हो क्या है ये लाइफ प्रोसेस। और क्या हो सकता है लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन, है ना। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन भी होता है, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से हम जिंदा है, तो ये भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। उसके बाद एक्सक्रीशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। हर वो प्रोसेस जो हमारे बॉडी में चलता रहता है, होता रहता है कंटिन्यूअसली, जिनकी वजह से हम जिंदा है, हमारा बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पा रहा है, वो क्या है, वो एक लाइफ प्रोसेस है। ओके, वेरी क्लियर। नाउ we'll shift into the next section, that is nutrition, the first type of life process। लाइफ प्रोसेस में अभी हमने पढ़ा कि हर वो प्रक्रिया जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, वो एक लाइफ प्रोसेस है। उसमें पहला एग्जांपल था हमारा न्यूट्रिशन। देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है ना। न्यूट्रिशन, है ना, बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखने वाला मैं, एकदम सिंपल तरीके से डिफाइन कर रहा हूं मैं न्यूट्रिशन को। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज सिंपली द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे प्राप्त कर रहा है ना, कि वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन कर रहा है, दिस इज व्हाट न्यूट्रिशन इज, है ना। क्या वो अपना खाना खुद से बना रहा है या इट इज डिपेंडिंग ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, दिस इज व्हाट न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा है तो वो ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या फिर अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, तो वो आ जाएगा हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। जानिए, पहले देखते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। तो एकदम आसान भाषा में लिखेंगे, इट इज द मोड ऑफ फूड इनटेक। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे प्राप्त कर रहा है, वो हो जाता है उसका न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, है ना। इसके टाइप्स जानते हैं हम। पहला टाइप है ऑटोट्रॉपिक, है ना, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा है हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या अंतर है दोनों में भाई? न्यूट्रिशन अभी बोला गया कि खाना खुद से प्राप्त करना या फिर दूसरे पे डिपेंड करना, है ना। तो उसी बेसिस पे न्यूट्रिशन को दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक, जिसमें ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेंगे। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है? पहला है इसमें प्लांट, है ना। प्लांट्स हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना।
तो प्लांट्स कम अंडर द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हीटरोट्रॉपिक, है ना। हीटरोट्रॉपिक में ना 3 टाइप्स हैं, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं ना, तो इनमें एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, इसमें टोटल 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द फर्स्ट वन इज पैरासिटिक, है ना, पैरासिटिक। इसके एग्जांपल्स लिख दूंगा मैं सिर्फ और समझा दूंगा क्या है ना। सैप्रोफाइटिक, द सेकंड वन इज सैप्रोफाइटिक एंड द फाइनल वन इज, द थर्ड वन इज होलोजोइक। ओके, तो देखते हैं ये हीटरोट्रॉपिक में जो 3 टाइप्स आए हैं निकल के सामने, इनमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म बाय द मींस ऑफ दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस ऑब्टेन देयर फूड, है ना, कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब पैरासाइट टर्म से निकला है, मतलब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ना एक ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है विदाउट किलिंग दैट होस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना। मतलब कोई भी ऐसा जानवर है जो किसी दूसरे जानवर के शरीर पे रह रहा है, उसके शरीर से खाना प्राप्त करता है बिना उस जानवर को मारे, है ना। एग्जांपल इसका होगा लीश, है ना, टेपवर्म्स। क्लियर। दूसरा है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है भैया? सेप्रोफाइट्स मतलब ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, तो ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी भी डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, डेड या डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है ना। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें? मशरूम्स, फंजाइस, है ना, फंजाई। The last one is holozoic. Okay, holozoic mode of nutrition ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड ईट करता है ना, मतलब सॉलिड खाना खाता है। वो सैप्रोफाइटिक नहीं एग्जिबिट करता है, वो पैरासिटिक नहीं एग्जिबिट करता है, कोई वो सॉलिड खाना खाता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स एग्जिबिट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल्स ऑल्सो एग्जिबिट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स, है ना, और एनिमल्स। Here it is. So this is all about nutrition, and this is what we have to study in nutrition. The 2 types of nutrition. What nutrition is? The 2 types of nutrition, that is autotrophic and heterotropic. What kind of organism exhibit the autotrophic mode of nutrition, that is plants, and what are the different types of heterotropic mode of nutrition, that is parasitic, saprophytic and holozoic. This is all about nutrition. Okay, so let's move into the next section. Okay, so the next section we are moving ahead towards is nutrition in plants. Okay, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, कैसे अपना फूड बनाते हैं। बचपन से जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो बेसिकली इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे क्या? फोटोसिंथेसिस। वेरी क्लियर। देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। अभी अगर मैं डेफिनेशन पूछूं आप सबसे तो फटाक से आप सब बता सकते हो मुझे। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। पर ये बच्चों वाली डेफिनेशन है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। क्लास 10 वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ फोटोसिंथेसिस की, उसके बाद उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो फोटोसिंथेसिस is the process by which green plants convert simple inorganic chemicals like
CO2 and H2O into complex organic food in the presence of sunlight and chlorophyll. ओके, क्या लिखा भैया मैंने, आइए समझते हैं, है ना। Photosynthesis is the process by which green plants convert simple inorganic chemicals like CO2 and H2O into complex organic food in the presence of sunlight and chlorophyll. This is the proper definition of photosynthesis. समझते हैं क्या बोल रहा है, मतलब photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है CO2 और H2O को कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे और समझेंगे पूरे प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड द केमिकल रिएक्शन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फोटोसिंथेसिस। For this I am going to divide this board into 3 sections, and in the 3 different sections I will be dealing with the first requirements of the photosynthesis, then in the second section I will be dealing with the steps of photosynthesis, है ना, and in the final section I will be dealing with the chemical equation of photosynthesis। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। ओके, फोटोसिंथेसिस को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अपने आपको आसानी से समझाने के लिए आई हैव डिसाइडेड दिस टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट सेक्शंस सो दैट एक प्रॉपर जगह में आपको मैं सब चीजें डिलीवर कर सकूं और आप उसे अच्छे तरीके से ग्रास्प कर सको, इजीली समझ सको, है ना। तो फोटोसिंथेसिस को 3 अलग अलग सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया है। हम समझेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या चीजें लगती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं और क्या उसका केमिकल इक्वेशन है। ओके, सो इन द फर्स्ट सेक्शन वी विल बी डीलिंग विद द रिक्वायरमेंट्स, है ना। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है भैया, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें लगती है, प्लांट्स को क्या क्या जरूरत पड़ती है। दूसरे सेक्शन में विल बी डीलिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। एंड इन द फाइनल सेक्शन विल बी डीलिंग विद द केमिकल इक्वेशन। इसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना। जैसे जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे बढ़ेगा हम केमिकल इक्वेशन को भी आगे बढ़ाएंगे, है ना। टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे आई एम टेकिंग अ मॉडल प्लांट, है ना। एक सिंपल सा प्लांट ले रहा हूं मैं, जिसमें एक इट्स जस्ट एन मॉडल प्लांट, है ना। एक लीफ है ना। खाना कहाँ पे बनता है प्लांट का, लीफ में ना। द किचन ऑफ प्लांट इज लीफ, द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीफ। ओके, तो इस लीफ में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा उसे देखेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहला जरूरत क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या क्या सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स लिखवाया था मैंने डेफिनेशन में, CO2 एंड H2O। तो भैया CO2 एंड H2O लीफ में कहां से आएंगे, देखते हैं कहां से आएंगे, है ना। पानी कहां डालते हैं हम लोग पेड़ में, रूट्स में, है ना। तो रूट से प्लांट वाटर अब्सॉर्ब करेगा और वाटर कैरिंग वेसल्स जो है ना, जो वाटर को प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, वो वेसल्स जो है वो वाटर को कहां ले जाएंगे, लीफ में ले जाएंगे। तो ये हमारा H2O कहां पहुंच गया, लीफ में पहुंच गया ना। ठीक है, चलो पहला मटेरियल आ गया यहाँ पे, H2O पहुंच गया लीफ में। ठीक है, जैसे ही ये वाटर H2O लीफ में पहुंचता है ना, लीफ में स्टोमेटा सुन रखा है आप लोगों ने, स्टोमेटा होता है एक, सुना है कभी,
सुना होगा, है ना। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। मतलब स्टोमेटा के थ्रू किसी भी प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है ना। तो इस स्टोमेटा में ना एक गार्ड सेल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल, ठीक है। जैसे ही ना ये वाटर रूट से लीफ में पहुंचता है, तो लीफ में जैसे वाटर पहुंचता है तो इस स्टोमेटा का जो गार्ड सेल्स होता है ना वो स्वेल कर जाता है, और जैसे ही ये स्टोमेटा का गार्ड सेल स्वेल करता है ना तो यहाँ पे स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, मतलब ये स्टोमेटा ओपन हो गया, खुल गया। नाउ द प्लांट इज एक्सपोज टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब अब इसमें गैसेस का एक्सचेंज होगा। जैसे ये स्टोमेटल पोर ओपन होता है, सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है उसे क्या करता है, ये प्लांट अब्सॉर्ब कर लेता है ना। तो वाटर कहां से कैसे आ गया लीफ में पता चल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसा आया वो भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। स्टोमेटल पोर ओपन होता है ना, गार्ड सेल्स के स्वेल होने की वजह से, और थ्रू दैट स्टोमेटल पोर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीफ, ठीक है। तो भैया H2 और CO2 दोनों आ गए हैं, यहाँ पे इक्वेशन भी लिखना शुरू कर देंगे हम, है ना। CO2 और H2 आ गया ना। अब क्या होता है, स्टेप्स ऑफ देखेंगे फोटोसिंथेसिस। जब तक ये नहीं आए हुए रहते हैं ना वाटर और CO2, तब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुआ रहता है ना। दे आर कंटिन्यूअसली टेकिंग प्लेस, बट जब CO2 और H2 आ जाते हैं ना तब फोटोसिंथेसिस शुरू होता है ना। फोटोसिंथेसिस का खेल अब शुरू होगा। पहला स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पहला स्टेप अब्जॉर्प्शन ऑफ light with the help of chlorophyll, है ना। अब ये क्लोरोफिल क्या नया चीज आ गया भाई, है ना। ये लाइट तो ऑब्जॉर्व करता है, जो फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है, लाइट को ऑब्जॉर्व करता है ना। वो लाइट कैसे ऑब्जॉर्व करता है, वाटर कैसे आता है वो देख लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है लीफ में वो देख लिया हमने। अब देखेंगे कि ये क्लोरोफिल लाइट को कैसे ऑब्जॉर्व करता है ना। क्योंकि सनलाइट आएगा तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो जब आप क्लास 8 और 9 में आप जब पढ़ रहे होंगे ना प्लांट सेल, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक सेल ऑर्गेनेल का नाम, है ना, जिसका नाम था क्लोरोप्लास्ट, है ना। इट्स समवट लाइक दिस, है ना, इस तरह का होता है कुछ स्ट्रक्चर। और इस क्लोरोप्लास्ट में ना बहुत सारे ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। इन ग्रीन पिगमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है ना, ग्रीन पिगमेंट, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या फंक्शन है इसका भैया, इसका काम है कि जैसे ही कोई भी लीफ सनलाइट में एक्सपोज होगा वैसे ही ये सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा, है ना। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ क्लोरोफिल इज टू अब्सॉर्ब सनलाइट, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया भैया अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, है ना। तो पहले सेक्शन में इसके रिक्वायरमेंट्स में हमने देख लिया कि CO2 कैसे आता है, H2O कैसे आता है, और फिर इसका पहला स्टेप जो है हमारा अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट वो कैसे होता है वो भी देख लिया हमने। इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल ने भैया सनलाइट को क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन आगे कैसे बढ़ेगा, आगे बढ़ाना है ना। अगला स्टेप में क्या होता है देखते हैं, द सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इन द सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, है ना।
और जैसे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हमारा H2O जो है यहाँ पे वो क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O into ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है ना, और फिर हाइड्रोजन क्या होता है, वो स्प्लिट कर जाता है, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, वेरी क्लियर। अब यहाँ पे ये H2O टूट गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, O2 में टूट गया प्लस किसमें, H2O में। इक्वेशन को बैलेंस लास्ट में करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप। The third step and the final step of photosynthesis is reduction of carbon dioxide, है ना। थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ठीक, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस चीज में चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ये यहाँ पे C6H12O6 में। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। CO2 प्लस H2O लीफ में पहुंचा, उसके बाद क्लोरोफिल ने सनलाइट अब्सॉर्ब किया, ये लाइट क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी में, उससे क्या हो गया, ये हमारा H2O जो है वो टूट गया किसमें, O2 और H2O में। ठीक है, और फाइनल स्टेप में क्या हो गया, CO2 का रिडक्शन हो गया किसमें, ग्लूकोज में। सो दिस इज हाउ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। एक और इंपॉर्टेंट बात फोटोसिंथेसिस में ये है कि फोटोसिंथेसिस इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेप कभी भी हो जाएगा, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करता है। इट फॉलोज अ पर्टिकुलर पाथ, है ना, कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा, है ना। दिस इज प्री डिटरमाइंड कि पहले ये स्टेप होगा, तब ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप होगा, है ना। दिस मींस दैट फोटोसिंथेसिस इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। वेरी क्लियर। नाउ moving on to the next section, we are done with photosynthesis and for class 10 I think this much is all you need to know about photosynthesis in this chapter. Moving on to the next section, I think we'll be looking at nutrition in human beings. Okay, so the next topic in our chapter life process is nutrition in human beings. Nutrition in human beings, है ना। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है भैया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है वो समझ लो। बेसिकली हमें पढ़ना है इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, हाउ द फूड कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स इज डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू a form that is usable or that can be utilized by our body. Okay, तो देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है। इसमें हमें पढ़ना है क्या, डाइजेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डाइजेशन, है ना। डाइजेशन होता क्या है भैया, खाना पचाना, है ना। हाँ, खाना पचाना ही होता है डाइजेशन। बट अगर बायोलॉजिकली बात करें तो इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे खाने में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
तो तीन बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनके ब्रेकडाउन को इस फॉर्म में, है ना, ताकि वो हमारी बॉडी के काम में आ सके, है ना, एक ऐसे पर्टिकुलर फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करना तोड़ तोड़ के, ताकि हमारा बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर सके। नेचुरल फॉर्म में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर ये जो आपके प्रोटीन्स है या फिर फैट्स है, दिस कांट बी अब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी, है ना, ये हमारे बॉडी डायरेक्ट नेचुरल फॉर्म में इसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू ब्रेक दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सो दैट आवर बॉडी कैन अब्सॉर्ब, है ना। तो डाइजेशन सिंपली इज द ब्रेकडाउन ऑफ macronutrients present in our food so that it can be absorbed by our body. ओके, क्या क्या तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा हमने, सुना हमने, हम जानते भी हैं, जैसे कि सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, इसको डाइजेस्ट करना है हमको भैया। दूसरा क्या डाइजेस्ट करना है हमको, प्रोटीन करना है भैया, हमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। और क्या डाइजेस्ट करना है, फैट्स को, है ना। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये इस फॉर्म में अगर होंगे ना अपने नेचुरल फॉर्म में, तो हमारा बॉडी इसे अब्सॉर्ब नहीं कर सकेगा। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड कि हमें इसे ना किसी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होगा, ताकि हम इसे अब्सॉर्ब कर सके, ताकि हमारा बॉडी इसे अब्सॉर्ब कर सके। तो कब हमारा बॉडी अब्सॉर्ब कर पाएगा कार्बोहाइड्रेट्स को, देखते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स को ना हम चेंज कर देंगे, मतलब हमारे बॉडी के एंजाइम्स चेंज कर देंगे, किसमें, ग्लूकोज में। जब कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे बॉडी के एंजाइम्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, तब कार्बोहाइड्रेट्स अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा हमारे बॉडी के द्वारा। प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अमीनो एसिड्स में। जब प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो हमारा बॉडी इसे क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। और फैट्स कब अब्सॉर्ब होंगे, जब फैट्स को हमारा बॉडी फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दे। ओके, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में जब कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फैट, तो फिर हमारा बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली डाइजेशन इज ऑल अबाउट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स into the simple and defined particles that can be easily absorbed by our body. So this is what we will be doing in the entire process while studying the entire process of digestion via diagram with the help of a diagram. Okay, देखते हैं अगले सेक्शन में हम लोग कि डायग्राम के साथ कि हमारे बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, कैसे किस किस स्टेज पे कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में टूटता है, किस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, और फाइनली किस तरह से हमारा बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर पाता है। ओके, सो हियर वी आर, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई एम नॉट दैट हैंडी विद द डायग्राम, सो इट्स बस काम चलाओ, है ना, ठीक है ना, आई एम नॉट दैट गुड इन आर्ट्स। सो बट जो जरूरत की चीजें है ना, उसे मैंने अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। दिस इज हाउ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लुक्स लाइक, है ना, और कौन कौन से ऑर्गन हमारे डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो दिस इज द डायग्राम, लेट अस स्टार्ट लेबलिंग इट नाउ। सो द फर्स्ट ऑर्गन दैट पार्टिसिपेट्स इन द डाइजेशन प्रोसेस इज बकल कैविटी। ओके, बकल कैविटी या फिर इसे माउथ भी कहते हैं, है ना। The second organ is esophagus, है ना। The next one is a J-shaped structure
called stomach. The next sections include two organs, that is liver and pancreas. Okay, these are very essential part of the digestive system and play a very crucial role in the digestion of certain nutrients. Okay, this coiled structure है ना, यहाँ पे पूरा coiled सा structure एक दिख रहा है, इसे कहते हैं small intestine, है ना, intestine, and this thick coiled structure is called large intestine, है ना. What is this? This is large intestine. So these are the part that take part in the digestion process, है ना. और नीचे थोड़ा आएंगे तो this place is called rectum, where the waste material is stored, and the final opening is anus. Okay, through which the food or the waste material is thrown out of the body. So let's begin with this process, how the digestion process takes place. Okay, so whenever we eat food, है ना, it enters into our mouth, and in the mouth this food gets masticated by our teeth, है ना. मुंह में चार दांत होते हैं ना, incisors, canine, premolars and molars. ये चारों तरह के दांत मिलके क्या करते हैं, हमारे फूड को मैस्टिकेट करते हैं, एकदम फाइन पार्टिकल्स में उसे चर्न करते हैं, उसे ग्राइंड कर देते हैं. As a result of which these particles get converted into fine and easily swallowable particles. Okay, और इस मैस्टिकेशन के साथ क्या होता है, हमारे माउथ में ना सेवरल सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, है ना. तो ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं, एक बात दिमाग में हमेशा अच्छे से बिठा लो कि डाइजेशन का पूरा खेल जो है ना वो एंजाइम्स पे है. कोई सा भी फूड, कोई सा भी न्यूट्रिएंट अगर डाइजेस्ट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की वजह से होता है ना. एंजाइम्स ही किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट को अलग अलग फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं. क्या हो गया, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, हमने फूड खा लिया है, अब वो फूड हमारे माउथ में है और माउथ में टीथ ने उसे मैस्टिकेट कर दिया है और सलाइवा उसे लुब्रिकेट कर दिया है, सलाइवा ने उसे लुब्रिकेट कर दिया है. ओके, माउथ में यहाँ पे ना सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं. ओके, इस जगह पे सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, इस जगह पे होते हैं और इस जगह पे होते हैं, है ना. मतलब अगर मैं रियल में दिखाऊं तो हमारा जो सेलेवरी ग्लैंड्स है ना, एक इस जगह पे होगा और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. ओके, तो 3 सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे निकलता है एक एंजाइम, उसका नाम क्या है, सेलेवरी अमाइलेज. क्या नाम है उसका, सेलेवरी अमाइलेज, है ना. अब ये सेलेवरी अमाइलेज क्या करेगा, ये सेलेवरी अमाइलेज किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को. यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूं, है ना, ताकि हम देखेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट कहां पे डाइजेस्ट हो रहा है. ओके, तो खाना खाया हमने, मुंह में मैस्टिकेशन हो गया, है ना. अब सबसे पहला एंजाइम आया हमारे फूड के कांटेक्ट में, वो क्या है, सेलेवरी अमाइलेज. किसने छोड़ा ये एंजाइम, सेलेवरी ग्लैंड्स ने जो हमारे माउथ में है. अब ये सेलेवरी अमाइलेज जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में. स्ट्रेट अवे किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में. तो भैया देखो डाइजेशन का प्रोसेस यहां से शुरू हो गया. डाइजेशन का क्या मतलब था, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना है ना. तो देखो कार्बोहाइड्रेट जो था हमारे खाने में, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में. किसने करा, सेलेवरी अमाइलेज ने. ठीक है भैया, तो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट का डाइजेशन का काम यहाँ पे समझ लो हो गया. ठीक है, अभी भी हमारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, खाना हमारा आगे बढ़ेगा. माउथ से जब हमारा फूड लुब्रिकेट होके, सलाइवा होता है ना हमारे माउथ में, वो फूड को हमारा लुब्रिकेट कर देता है ताकि हमारा फूड इजीली पास कर सके हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, है ना. तो अब देखते हैं आगे क्या होता है मैस्टिकेशन के बाद और कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के बाद. जब हम फूड स्वेलो करते हैं, अपने मुंह से पास ऑन करते हैं ना,
तो एक यहाँ पे दो चीजें हैं समझने लायक, है ना, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डाइजेशन बट समझने वाली चीज है और जानने वाली चीज है ना। हमारा जो नेक है ना, यहाँ पे दो पाइप है, एक फूड पाइप होता है और दूसरा विंड पाइप है। हमारा विंड पाइप जो है ना वो सामने में है और उसके पीछे में होता है हमारा विंड पाइप, फूड पाइप। ओके, तो सामने में होता है हमारा विंड पाइप और फूड पाइप जो है उसके पीछे होता है ना। अगर समझे हम लोग तो अगर ये हमारा माउथ है ना, तो यहाँ पे होता है हमारा विंड पाइप और इससे थोड़ा सा नीचे इधर में इसके पीछे साइड में होता है हमारा फूड पाइप, है ना। तो चूंकि मुंह से ज्यादा क्लोज और पहले में विंड पाइप है ना, ये विंड पाइप है और ये फूड पाइप है ना। तो चांसेस क्या बन रहे हैं, जब हम फूड को स्वेलो करेंगे तो फूड कहां चला जाए, विंड पाइप में जा सकता है कि नहीं। चांसेस तो यही बन रहे हैं क्योंकि वो आगे है ना। बट दिस डज नॉट हैपन। होता क्या है यहाँ पे, फूड हमारा किसमें जाता है, फूड पाइप में। ओके, अब ये कैसे होता है उसे समझते हैं। हमारे विंड पाइप के ऊपर में ना एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट्स लाइक दिस। ओके, जब फूड पीछे से आता है ना हमारे माउथ से फूड पाइप की तरफ जाने के लिए, तो ये फ्लैप विंड पाइप के ऊपर होता है। जब फूड पुश करता है ना इसे, तो ये फ्लैप यूं बेंड कर जाता है और जो ये बेंड करता है ना, तो नीचे के विंड पाइप को वो कवर कर देता है। तो विंड पाइप हमारा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फूड इज पास्ड ऑन इनटू द विंड पाइप। मतलब ये फ्लैप नीचे आ गया और इसने क्या करा, विंड पाइप को बंद कर दिया। क्या हो गया उसका फायदा हमारे पास, ये हो गया फायदा, ये जो फूड आ रहा था उधर से ना विंड पाइप में ना जाके कहां चला गया, फूड पाइप में चला गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फूड एंटर्स इनटू द फूड पाइप, नॉट इनटू द विंड पाइप। तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, इसका एक नेम है। क्या नेम है इसका, इसका नेम है एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं इसको, एपिग्लॉटिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी मस्ट नो दिस, है ना। तो एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप एंड पुशेस द फूड इनटू द फूड पाइप। ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट बात, है ना, स्टार मार्क कर लो इसे। दूसरा क्या है भैया, फूड हमारे जब फूड पाइप में आता है ना, तो हमारा फूड पाइप तो भैया हॉलो सॉलिड सिलेंडर है नहीं कि उसमें सामान डाला यूं और नीचे आ गया सीधा, ऐसा नहीं होता। हमारा फूड पाइप जो है ना वो मस्कुलर है ना। तो उसमें फूड पास करने के लिए देयर रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर मूवमेंट, राइट, रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर मूवमेंट। हमारा ये फूड पाइप है ना, इसमें एक फूड आया है ना, फूड पार्टिकल, लेट्स कंसीडर समझने के लिए बस इसे, है ना, ये कोई फूड आया इसमें, ठीक है। तो ये हॉलो तो है नहीं भैया और सॉलिड तो है नहीं कि फूड सीधा चला जाएगा स्टमक में। तो इस फूड को आगे पास ऑन करने के लिए, है ना, हमारा फूड पाइप या फिर कह लो पूरा एलिमेंट्री कैनाल एक पर्टिकुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है ना। मतलब इसको ऐसे समझते हैं ना, मैं आप लोग इसे थोड़ा इमेजिन करना, लेस इसे कंसिडर करते हैं ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है। एक फूड आया यहाँ पे इस जगह पे, है ना, तो यहाँ पे है फूड, इस गैप में फूड है ना, जस्ट कंसिडर दैट इस गैप में फूड है। तो इस फूड के ऊपर वाला जो सेक्शन होगा ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ये फूड का यहाँ पे अगर गैप में फूड है तो इसके ऊपर वाला सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फूड के नीचे वाला सेक्शन क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, है ना। मतलब एक्सपैंड हो गया तो नीचे जगह बन गई ना, तो ये फूड जो बीच में था वो कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी तरह से फिर ऊपर का कॉन्ट्रैक्शन, नीचे का एक्सपेंशन, फूड और नीचे, फिर ऊपर का कॉन्ट्रैक्शन, नीचे का एक्सपेंशन, फूड और नीचे। और बढ़िया तरीके से समझते हैं, ये यहाँ पे फूड है ना हमारा, ये वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एग्जिबिट करेगा। और इसके नीचे वाला पोर्शन ये क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, है ना, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस फूड पार्टिकल विल बी
विल मूव अहेड, है ना, थोड़ा नीचे आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। सो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का एक रिदमिक प्रोसेस है, रिदमिक मूवमेंट है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है। क्या कहते हैं इस मूवमेंट को? इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, या तो फिर सीधा कह लो पेरिस्टैल्सिस, है ना, पेरिस्टैल्सिस। तो भैया बात हो गई यहाँ पे कि फूड हमारा जो है माउथ में एंटर करता है, वहां पे मैस्टिकेशन होता है टीथ के द्वारा, और सेलेवरी अमाइलेज जो सेलेवरी ग्लैंड से एंजाइम्स आते हैं, उसने कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्लूकोज में। अब मुंह से हमने अपने फूड को पास ऑन कर दिया, स्वैलो कर लिया फूड पाइप में। फूड पाइप में कैसे आ गया खाना हमारा? विंड पाइप में ना जाके एपिग्लॉटिस की वजह से। अब जब फूड पाइप में खाना आ गया है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? पेरिस्टैल्सिस से बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ूं, मैं आगे लेकर जाऊं? ओके, तो जब हमारा खाना इसोफेगस यानी फूड पाइप में आगे बढ़ता है तो कहां पहुंचता है? उसका अगला डेस्टिनेशन है स्टमक। दिस जे शेप्ड स्ट्रक्चर, स्टमक, पेट में, है ना। तो पेट में क्या होता है खाने के साथ? इन द स्टमक द फूड इज स्टोर्ड फॉर 3 to 4 आवर्स, है ना, 3 से 4 घंटे तक यहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, फूड में अभी भी हमारे पास प्रोटीन है, फैट्स है और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो इनको हमें डाइजेस्ट करना है। अब देखना है कि फूड के साथ स्टमक में क्या होता है। ओके, तो फूड में ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और वो क्या करते हैं? वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं, है ना। और वो गैस्ट्रिक जूसेस क्या क्या है? पहला वो HCl सिक्रीट करता है, दूसरा पेप्सिन सिक्रीट करता है, एंड द थर्ड वन इज म्यूकस। ओके, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये 3 एंजाइम्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक में सिक्रीट करते हैं, जिससे आगे का डाइजेशन का काम होगा। देखते हैं कैसे होता है। ये जो पेप्सिन है ना भैया, इसका काम है प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देना, है ना, मतलब प्रोटीन्स को फर्दर तोड़ना पेप्टोन्स पेप्टाइड्स में, या फिर यहाँ पे आप सीधा कह लो क्लास 10th के लेवल में सीधा एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये पेप्सिन का काम क्या है? यहाँ पे जो हमारा खाना पहुंचा ना, इस खाने में जितना भी प्रोटीन है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है? एमिनो एसिड्स में। ठीक है, लेकिन ये है बदमाश, इसका है एक तो शर्त। ये क्या कहता है? हम फूड का सारा प्रोटीन को तभी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे जब फूड हमको एसिडिक होके मिले। मतलब जब फूड एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर होगा फूड, तभी हम एक्ट कर पाएंगे और प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर पाएंगे? एमिनो एसिड्स में। तो इस शर्त की पूर्ति के लिए हमारा स्टमक एक और एंजाइम सिक्रीट करता है, वो क्या है? HCl। हाँ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है जो बहुत डेंजरस है, और हमारे स्टमक में ये सिक्रीट होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फूड विच इज स्टोर्ड इन द स्टमक गेट्स बिकम्स एसिडिक इन नेचर। और जैसे ही ये फूड एसिडिक होता है, ये पेप्सिन क्या करता है? फटाक से इस पे एक्ट करता है और इसमें प्रेजेंट सारे प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड्स में। तो भैया स्टमक में प्रोटीन्स को पेप्सिन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? एमिनो एसिड्स में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को अमाइलेज ने कर दिया किसमें कन्वर्ट? ग्लूकोज में। प्रोटीन्स को पेप्सिन ने कर दिया किसमें? एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट। बच गया हमारे पास क्या? फैट्स। ऐसा नहीं है कि माउथ में सारा कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पेट में सारा प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जा रहा है, पर कुछ पार्ट है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दीज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द माउथ एंड द स्टमक, है ना। अब आगे बढ़ता है हमारा फूड। 3 घंटा वहां पे 4 घंटा स्टमक में रहा, प्रोटीन्स का डाइजेशन पेप्सिन ने कर दिया, है ना। अब उसके बाद हमारा फूड स्टमक हमारा क्या करेगा? पेरिस्टैल्सिस करेगा और हमारे फूड को कहां सेंड कर देगा? इस नेट मेसी स्ट्रक्चर में, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन,
है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। यहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, है ना, और वो मिलके सारे फूड में जितना भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसे ब्रेक कर देते हैं, ताकि हमारा बॉडी उसे क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके। ओके, तो देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना लीवर का सिक्रीशन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना पैनक्रियाज का भी सिक्रीशन आता है। ठीक है, ये पैनक्रियाज पैनक्रेटिक जूस रिलीज करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और लीवर भी अपना बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सिक्रीट करता है जो कहां पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखते हैं लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, है ना, और पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रेटिक जूस। ठीक है, पैनक्रेटिक जूस, बाइल जूस के साथ ये बाइल सॉल्ट्स भी करता है सिक्रीट लिवर हमारा, है ना, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, अब ये पैनक्रेटिक जूस जो रिलीज किया पैनक्रियाज ने, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, है ना, इसमें दो एंजाइम्स होते हैं, है ना, कौन कौन सा, पहला है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज। इस पैनक्रेटिक जूस से पहला आया ट्रिप्सिन, है ना, और दूसरा है लाइपेज। ठीक, पैनक्रेटिक जूस पैनक्रियाज ने रिलीज किया, उस पैनक्रेटिक जूस में क्या क्या एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लेकिन ये दोनों जो एंजाइम्स है ये दोनों भी बहुत सर्तियां है। इनका भी कहना है अब क्या है, हम तभी काम करेंगे, हम अपने फूड को तभी डाइजेस्ट करेंगे, आपके फूड को, जब वो फूड बेसिक इन नेचर हो, मतलब अल्कलाइन इन नेचर हो। तो बताओ, अब यहाँ स्टमक में एकदम हाईली एसिडिक इन नेचर कन्वर्ट कर दिया HCl ने फूड को। अब उसके थोड़ा सा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही ये एंजाइम्स कह रहे हैं कि भैया हमको फूड को तुम किस में करके दो, एल्कलाइन में। तो भारी दुविधा है। ऐसी स्थिति में हमारा जो लिवर है ना, बहुत समझदार आदमी है। वो क्या करता है, वो फटाक से अपना बाइल जूस सिक्रीट करता है, और बाइल जूस क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो ये बाइल जूस जैसे ही सिक्रीट करके इस फूड में मिलता है ना, तो बाइल जूस क्या कर देता है, हमारे फूड को बेसिक इन नेचर कर देता है। और जैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड हमारा बेसिक इन नेचर हुआ, ये दोनों एंजाइम्स फटाक से काम करते हैं। ठीक है, और अपना अपना जो इनका काम है वो कर देते हैं। क्या काम है इनका, देखते हैं। ट्रिप्सिन, ये है ना, ये तो पेप्सिन का भाई लग रहा है, छोटा भाई जैसा, सरनेम सेम है दोनों का, है कि नहीं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन जो है ना, जो बचा हुआ प्रोटीन जो खाना में रह गया, उसको किसमें चेंज कर दिया, एमिनो एसिड्स में। अब प्रोटीन्स का भी काम खत्म और कार्बोहाइड्रेट्स का भी काम खत्म, बच गया ये लाइपेज, है ना, ये लाइपेज, ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को, मतलब ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है इसके स्मॉलर फॉर्म में, है ना, ताकि हमारा बॉडी फैट्स को अब्सॉर्ब कर सके। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन है, ये लाइपेज ना फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स पे एक्ट नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, उस पे एक्ट नहीं कर पाता है। What it requires is that the fat globules must be smaller in size। तो फिर से एक दिक्कत आ गई, ये फैट को कैसे कन्वर्ट किया जाए, है कि नहीं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। तो फिर से हमारा समझदार बंदा जो है लिवर, वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल सॉल्ट। और ये क्या करता है, ये बाइल सॉल्ट जो है ये फैट को इमल्सिफाई कर देता है, मतलब फैट के स्मॉल बिग ग्लोब्यूल्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ओके, एज अ रिजल्ट अब ये जो बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट ने क्या कर दिया, फैट के बड़े जो ग्लोब्यूल्स थे उसको कन्वर्ट कर दिए स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। यहां पे मैं लिख देता हूं इमल्सिफिकेशन क्या होता है ना, ये भी कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है।
दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इमल्सिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन है द ब्रेक डाउन या फिर द कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट globules into small globules, है ना। मतलब फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उसको कन्वर्ट करता है सबसे पहले बाइल सॉल्ट्स किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। thus emulsification is the process in which the big molecules or big globules of fats are converted into the small globules of fats by the bile salts। अब जैसे ये फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया ना, लाइपेज उस पे फटाक से एक्ट करेगा और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड्स में। यहाँ पे देखते हैं फैट्स जो है हमारा, इसका पहले इमल्सिफिकेशन हुआ है ना, इमल्सिफिकेशन हुआ यहाँ पे, उसके बाद इस पे एक्ट किया लाइपेज ने और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड्स में, है ना, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डाइजेशन इज ऑल अबाउट। This is how the different macronutrients of the food gets broken into simpler and fine particles। अब जब ये सारे फूड अपने फॉर्म में, अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हमारा बॉडी इसे अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है। अब्सॉर्प्शन का काम कहाँ पे होता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये यू मान लो, कंसिडर कर लो, इफ दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं विलीज, है ना। और ये विलीज थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन रहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, ये जो फूड कन्वर्ट हो गया ना अब्सॉर्बेबल पार्ट में, उसको अब्सॉर्ब करना है। ये विलीज स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना, जो फूड कन्वर्ट हो गया है सिंपल फॉर्म में, उसको अब्सॉर्ब करता है और ब्लड वेसल्स को पहुंचा देता है, ताकि फिर वो ब्लड वेसल्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या करे, एनर्जी को, फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना। तो ये विलीज के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड का अब्सॉर्प्शन होता है। और ये विलीज जो है ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं, जो इस अब्सॉर्ब फूड को थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ द फाइनल सेक्शन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड हमारा कहां चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलीज होते हैं, इसी तरह के विलीज होते हैं इसमें भी, है ना, बट ये अब्सॉर्ब करके बॉडी को नहीं देते हैं कुछ भी, है ना। व्हाट द विलीज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन डू इज दे अब्सॉर्ब द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट वेस्ट मैटर। अब यहाँ पे जो बच गया ना स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो भी बचा हुआ चीज लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वो एक्चुअली वेस्ट मटेरियल है, वो फीकल मैटर है ना। तो इसमें से, इस वेस्ट मटेरियल में से, फूड से, मतलब उस वेस्ट प्रोडक्ट से एक्सेस वाटर को अब्सॉर्ब करता है और इस वेस्ट को एक सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये सेमी सॉलिड फॉर्म मूव करके यहाँ पे आके रेक्टम में स्टोर होता है और फिर एनस के थ्रू पीरियडिकली पास आउट हो जाता है ना। तो दिस इज हाउ द डाइजेशन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड वाया द इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, द फूड मटेरियल, द वेस्ट प्रोडक्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, है ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डाइजेशन, और इतनी सारी चीजों को ही जानना था हमें डाइजेशन में। एंड होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दीज थॉट्स, है ना। So this is all about digestion, and in this video we are going to deal this much of things. I hope this much is enough. So let's just give a brief recap. क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा इसमें लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है। देन वी मूव्ड ऑन टू दी फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस को हमने डिटेल में जाना, उसे बढ़िया से सीखा, प्रोसेस क्या है उसका, इक्वेशन क्या है, स्टेप्स क्या है उसमें। देन इन द नेक्स्ट सेक्शन वी डेल्ड विद द डाइजेशन इन ह्यूमंस, ओके। और ये डाइजेशन को हमने अच्छे से डील कर लिया, स्टेप वाइज क्या क्या होता है।
So this is about this video, and in the next video we'll be dealing with the next or the remaining sections of this chapter, the chapter number 1 of biology, है ना. लाइफ प्रोसेस के बाकी का सेक्शंस जो बचा हुआ है बुक में, उसे हम लोग अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में करेंगे.